Hallelujah. Welcome once again to our online Karma to Christ service. हालेलुया सबका स्वागत है आज का सुबह का हमारा ऑनलाइन सर्विस में। And we are continuing with our teaching on living your new life. हम वो शिक्षा कंटिन्यू कर रहे हैं नया जीवन जीने के लिए। We already spoke about how once we receive Jesus Christ, all things are made new. हमने ऑलरेडी पहले इसके बारे में बात की है कि पुरानी चीज सब नई हो गई है। When you come to Jesus Christ, you are now a new creation. जब आप मसीह में आते हो आप एक नई सृष्टि बन जाते हो। You have a new purpose. एक नया मकसद है। You have a new future. एक नया भविष्य है। And you also have a new authority over things in your life. एक नया अधिकार भी है, प्रभु एक नया अधिकार देता है। And you have also a new freedom. और एक नया मुक्ति भी है। You were before slaves to sin, but now you are set free from that slavery. पहले आप बंदी थे, अभी मसीह के जरिए आप मुक्ति पाए हैं। You are slaves to sin. आप पाप के गुलाम थे। You were slaves to your own selfish desires. आप पाप थे अपने चीजों के लिए, अपने जरूरतों के लिए। And God set you free. और उस गुलामी से मसीह ने आपको मुक्ति दे दिया। He gave you this new life so you can worship Him with this new life. उन्होंने नया जीवन दिया है ताकि आप मसीह को इस नए जीवन के साथ आराधना कर सकते हैं। And then He also gave you a new mission. और एक नया मकसद भी दिया है। That you will share the same message with other people. ताकि आप दूसरों के साथ मसीह के बारे में बात कर सकते हैं। And so God chose you to set you free so that you can go and set others free. यीशु मसीह ने आपको इस आज़ादी, इस मुक्ति दी है ताकि आप दूसरों को जाके इस मुक्ति, इस पवित्र आत्मा या इस मसीह के साथ उनको भी मुक्ति दिला सकते, आज़ादी दिला सकते। The Word of God says that we were reconciled back to God through Jesus Christ, and we have been given that same mission to reconcile others back to God. ये मकसद, जब हम मसीह में आते हैं हमको ये मकसद मिलता है कि मसीह हमको प्रभु से मिलाता है, तो उसके बाद हमारा ये मकसद हो जाता है कि दूसरों को मसीह के बारे में बताना ताकि उनको भी प्रभु से मिला सकते हैं। In other words, what God has given us freely, we can give to others. जो मसीह ने हमको मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दिया है, हम लोग दूसरों को भी उसी तरह दे सकते हैं। Amen. And then we understood that in order to be able to live this new life, we have to focus on the things of the Spirit of God. इस नया जीवन जीने के लिए, मसीह में नया जीवन जीने के लिए हम लोगों का ध्यान पवित्र आत्मा पर होनी है। Not only the Holy Spirit, the Spirit inside of us. We need to look on spiritual things and not so much on the natural things of life. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर जो आत्मा है उस पर ध्यान देना है, न कि प्राकृतिक चीजों पर। And this is how we will be set free from that sin that is constantly in our mind. और इसी तरह से हम लोगों को उस पाप से छुटकारा मिल सकता है जो हमारे दिमाग पर कब्जा करती है। And when we focus on the things of the earth and the desires of the flesh, then we will continually fail to keep God's laws. When we continually focus on the desires of the flesh,
we will fail to keep God's laws. जब हम अपने ज़रूरतों के बारे में और हमारी शरीर की ज़रूरतों के बारे में हम लोग जब ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम प्रभु की जो नियम है उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. So we saw that, first of all, everything is made new for us. We have a new life. हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको सब हमारे लिए सब नया करके दिया है. We saw that by focusing on the Spirit, we will have victory and be able to live that new life. हमने ये भी देखा कि हम जब पवित्र आत्मा पर विश्वास करते, उन पर निर्भर करते, हम लोग ये नया जीवन पा सकते हैं. So this is how we enjoy what God has prepared for us. इसी तरह हम लोग जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, हम लोग उस आशीष को पा सकते हैं. You see, if we are under the power and the control of the Holy Spirit, then that means that the Spirit lives inside of us. जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के नीचे डालते हैं तो उससे हम लोगों को पता चलता है, उससे फर्क ये होती है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे भीतर आके रहती है. And today we're going to see how do we bring death to the old things in our lives. आज हम देखेंगे कि जो पुरानी चीजें हैं हमारे जीवन में, उसको कैसे हम मृत्यु दिला सकते हैं. You see, if we do not put away the old, the new cannot enter. अगर हम पुरानी चीजें को अपने जीवन से निकाल नहीं सकते तो नया चीज नहीं लेके आ पाएंगे. I've told this story a few times, but it's a good story for us to understand how we need to empty ourselves in order to be able to receive what God has prepared for us. ये कहानी मैंने काफी बार बता चुका हूँ, एक और बार फिर बता रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को अपने आप को खाली करना है, पुरानी चीज को निकालना है, ताकि यीशु मसीह हम लोगों को नया चीज से भर सकता है. Now, I'm not sure if this story is true, but most probably it is. It makes sense. But as an example, it's good for us to listen to this story. मुझे ही नहीं पता कि ये कहानी सच है कि नहीं, लेकिन इस कहानी को एक और बार फिर दोहरा रहा हूँ ताकि कुछ हम लोग इस कहानी से सीख सकते हैं. And so there was this American man who was really crazy about martial arts. एक अमेरिका में एक इंसान है जो उसको मार्शल आर्ट्स माने कराटे में बहुत इंटरेस्ट था. And he had studied many things for many years. और उसने काफी सालों से काफी चीजों उसने पढ़ा कराटे के बारे में. And so he had become someone who had a lot of knowledge and was a very good fighter. और वो पढ़ाई करते करते वो ऐसा इंसान, ज्ञानी इंसान बन गया और एक बहुत अच्छी तरह से लड़ाई करता था. And so, but he wanted to go to the Tibet to learn from the monks about their martial arts. तो वह तिब्बत जाना चाहता था कि वहाँ के मंक माने वहाँ पे जो साधु रहते हैं, ये कराटे सिखाते हैं, वो चाहता था कि वहाँ पे जाए ताकि और कराटे में उसको ज्ञान आए. Now, these monks are some of the best in the world. और ये वहाँ पे जो मंक रहते हैं माने जो साधु रहते हैं जो कराटे सिखाते हैं, वो बेस्ट माने बहुत एक्सपर्ट्स हैं इसमें. And so it was a very long journey, go through mountains and had to walk for many days, maybe months, and finally he got to the temple on top of the mountain. और ये रास्ता काफी दूर था, अमेरिका से लेकर तिब्बत तक, और काफी जगहों से, काफी पर्वतों से जंगल से उसको गुजरना था. और ये मंकों का, ये साधुओं का मंदिर काफी ऊंची स्थान, वो सब पर्वत के सबसे ऊंची स्थान पर था. And so finally he got to the temple and he got to meet the monk, the head monk that is going to teach martial arts. तो वहाँ पे वो जब पहुंचा तो उसने जो वहाँ पे साधु था जो
ये कराटे सिखाने में विशेष था, जो चीफ था, मानी सबसे बड़ा ज्ञानी था वहाँ पे, उनसे मिला। And so the monk, the sensei or teacher asked him, okay, so what do you know about martial arts? तो ये विशेष ज्ञानी मंक जो कराटे में विशेष था, उसने इस अमेरिका के इंसान से पूछा भी, तुझे क्या ज्ञान है कराटे में? And so this American man started listing all his different belts and different things, different karate systems, and also all his trophies and everything he had done. He had quite a bit of knowledge. तो ये अमेरिका का इंसान, उसने क्या कहा, उससे ये सवाल पूछा गया कि तुझे कराटे में क्या ज्ञान है? तो ये उसने वापस जवाब दिया कि उसके कितने सारे उसने बेल्ट जीते, माने वो काला बेल्ट, येलो बेल्ट, जो भी बेल्ट देते हैं कराटे सीखने के लिए। उसने इस मंक, इस साधु से बोला कि मुझे ये बेल्ट है, वो बेल्ट है, और मैंने क्या क्या पुरस्कार जीते हैं ये कराटे के लड़ाई करते करते। So then the monk took a pause and he said, okay, come back after 7 years. तो ये मंक सोचने लगा, ये सब सुनने के बाद उसने इस अमेरिका के इंसान से बोला, ठीक है, 7 साल के बाद आओ। And the American man was very shocked and very disappointed. अभी ये इंसान इतना दूर से आया है, अभी ये मंक साधु बोल रहा है कि मैं 7 साल के बाद आओ, तो अभी वो निराश हो गया। He was actually very, very angry because it was a very tough journey. और उसको इतना गुस्सा आया इस साधु पर, क्योंकि उसने काफी मुश्किलों से, काफी जंगलों से आके यहाँ पे इस मंदिर में आके पहुंचा था। And so he asked him, why? I'm already here. You can teach me now. तो उसने उस मंक से बोला, उस साधु से बोला, मैं तो यहाँ पे हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, पहुंच गया हूँ, आप मेरे को अभी सिखाओ। And the monk answered, I cannot teach you anything because your cup is already full. तो उस साधु जो ज्ञानी था, उसने इस अमेरिका के इंसान से उसने बोला, मैं तुझे कुछ नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि तेरा कप, माना तेरा ज्ञान ऑलरेडी भर चुका है, तेरा कटोरा भरा हुआ है। So in other words, he wanted him to go and empty himself so that he could receive the new knowledge and the new teaching that this monk had to offer him. तो साधु की यही ध्यान थी, यही इच्छा थी कि ये इंसान जाके पहले अपने आप को खाली करे, ताकि उसके बाद जो ज्ञान इस मंक के द्वारा उसको सिखाया जाए, वो स्वीकार कर पाएगा। And this is exactly the way Jesus Christ works in our lives. और इसी तरह यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। The only way to achieve the spiritual greatness and the spiritual power we want is to first empty ourselves of what we think we know. आत्मिक महानता पाने के लिए एक ही रास्ता है कि पहला हम लोगों को अपने आप को खाली करना है। We have to completely surrender to the feet of Jesus Christ. हमको यीशु मसीह के सामने पूरा हमारा अपना को रखना है। All the old things in our life have to be brought to the cross. हमारे जीवन में जो भी पुरानी चीज है, हम लोगों को क्रूस पे आके रखना है। We have to basically die like Christ did on the cross to everything that we are. पहली चीज है कि जो भी हमारा वास्तव्य है, उसको हमको मारना है, जैसे मसीह क्रूस पे मरा। You see, when you receive Jesus Christ, you're entering a new relationship. जब हम मसीह को पाते, एक नया रिश्ता हम लोग बनाते मसीह के साथ। And in this new relationship, just like in any new relationship in your life, things have to change. ये मसीह के साथ हम लोग जो नया रिश्ता बनाते हैं, ये
उसी तरह है जैसे हम लोग कोई एक नया रिश्ता एक इंसान के साथ बनाते हैं, तो हमारा जब नया रिश्ता हम लोग बनता है किसी के साथ, वो हमारे जीवन में काफी बदलाव आती है। You see, when you get married, जब आप शादी करते हो, everything has to change. सब कुछ बदलना चाहिए। You cannot be the same person you were before marriage. आप वही इंसान नहीं बन के रह सकते जो शादी के पहले थे, Because you no longer live on your own. क्योंकि आप अभी अकेले नहीं रहते हो। Your decisions don't only affect you, but they affect also your spouse. आपका जो डिसीशंस है, माने आपका जो फैसले हैं, आपका खुद का नहीं है। आपको जो फैसले आप लेते हैं, आप आपके लिए है और आपकी वाइफ या हस्बैंड के लिए भी है। And so these decisions can actually even they can destroy your life, both of your lives, or they can move them forward in the correct manner. और ये फैसले कभी आपको नीचा लेके जा सकता है या आपको आगे भी लेके जा सकता है। So your decisions no longer affect you only, but they affect the life of your family. जो अभी जो फैसले आप लेते हो, वो फैसले आपके लिए सिर्फ वो पूरा आपका परिवार के लिए इस्तेमाल होता है। And you are no longer a free person in the sense that you have to give accounts to your spouse. तो अभी शादी के बाद आपको आपका मन जो अकेलापन है, नहीं, आपको अपने आप वो फ्रीडम नहीं है। अभी आपको अपने स्पाउस को, माने अपने बीवी या हस्बैंड को अकाउंट देना पड़ता है, माने कि आप कहाँ गए, क्या कर रहे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। You cannot just spend the money the way you used to without giving accounts. आप पैसा को या अपने कमाई को ऐसा खर्च नहीं कर सकते बिना अपने पार्टनर को, अपने बीवी को बताए बिना। You cannot just leave the house whenever you want and come back whenever you want. आप ऐसा घर को छोड़ के बाहर जाके टाइम लगा के फिर वापस आना, ये भी नहीं कर सकते। You cannot keep your house a mess because now somebody else lives with you. आप अपने घर को पहले की तरह कचरे के जैसा नहीं रख सकते। आपको अभी साफ करके सफाई रखना है, क्योंकि अभी कोई और एक इंसान आपके साथ रह रहा है। Now, if you are married, you know what I'm talking about. अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। But this new relationship is not only about losing your freedom, it's actually about gaining the blessings God has prepared for you. ये नया रिश्ता ऐसा नहीं है कि आप अपनी आजादी खो रहे हो, लेकिन ये आजादी खोने से अपने आप को आशीष पाने के लिए आप रास्ता बना रहे हो। See, before you were one person, now you are two people as one. पहले आप एक थे और अभी आप दो इंसान एक बन के रह रहे हो। Now you have a new identity. अभी आपका एक नया चरित्र है। Everything you do reflects who your spouse is. सब कुछ जो आप करते हो वो आपकी बीवी और आपका पहचान बन के रहता है। So we have to be very careful how we enter this relationship. तो एक बहुत हम लोगों को सोच समझ के रिश्ते बनाना चाहिए। So when you receive Jesus Christ, you represent Jesus Christ and he represents you. जब आप मसीह में आते हो, तब आप यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हो। And so we have to understand that in order to receive what God has prepared for us, we have to die to ourselves. इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हमको ये पाना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, तो हम लोगों को वो सारी पुरानी चीजों को मृत्यु देनी है। Now, these are not my words. These are the words of Jesus Christ. ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है यीशु मसीह के। Let's go to Matthew chapter 16. आइए हम मत्ती 16 में चलते हैं। Matthew chapter 16. Jesus is talking here to his disciples. यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहा है।
And chapter 16, verse 24. मत्ती का 16 उसमें 24. Now here Jesus says, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. मत्ती का 16 उसका 24 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले. And then verse 25 says, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. मत्ती का 16 उसका 25, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा. So Christ is giving us an instruction here if we actually want to be his disciple. तो यहाँ पे यीशु मसीह एक आज्ञा दे रहा है, एक शिक्षा दे रहा है कि अगर हम लोगों को उनका चेला बनना चाहिए. So the very, very first step Christ says is that we have to deny ourselves. जो पहला कदम मसीह शिक्षा में दे रहे कि हमको अपने बारे में नहीं सोचना है. And we have to pick up our cross. और क्रूस को उठाना है. In other words, we have to die. माने मृत्यु लेना है. Not die physically. माने शारीरिक तौर पर मृत्यु नहीं. But die to your person, to who you are. माने अपने जो आपका चरित्र को आपको मारना है, आपका जो इंसानियत है उसको खत्म करना है. You have to surrender to Christ. आपको यीशु मसीह को अपने पूरे जीवन को समर्पण करना चाहिए. You have to surrender your dreams. अपनी जो कल्पनाएं हैं उसको मसीह को देना है. You have to surrender your talents to Jesus Christ. आपको जो वरदान दिए हैं वो वरदान मसीह को देना चाहिए. And you have to surrender your expectation on men or what men can do for you. और आपको जो इच्छाएं हैं कि इंसान आपके लिए ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये सारी इच्छाएं आपको मसीह के हाथ में सौंपना है. You see, because before you met Jesus Christ, everything you were, everything you did was based on your fallen nature. मसीह से पहले आपका जीवन ऐसा था कि जैसे वो गिरा हुआ जीवन था. माने मसीह के बिना आपका जीवन पहले जो था. All your dreams and everything you were was founded based on your fallen nature. आपका जो कल्पनाएं थी, आपकी जो इच्छाएं थी, सब पतित प्रकृति के ऊपर था. So then everything that you wanted to do in life that you thought was good was actually selfish and wrong. आप मसीह से पहले आपका जो जीवन था, आपकी जो इच्छाएं थी, वो सब स्वार्थी था. Even if you think that it was good, it might be good, yes, but the foundation was not the glory of God. अगर ठीक है कि आपकी जो कल्पनाएं थी, आपकी जो इच्छाएं थी, अच्छी थी मसीह से पहले, लेकिन वो सारी कल्पनाएं और इच्छा उनका आधार मसीह के ऊपर नहीं था. Now, I'm not saying that you have to stop becoming a doctor. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है. I'm not saying you have to stop dreaming of becoming a singer. मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सिंगर नहीं बनना है. I'm not saying that you have to stop becoming someone who is wealthy. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिच माने बहुत सारा पैसा आप नहीं कमाएं. What I'm saying is that all these things that you desire and you want to do, you have to give them to Jesus Christ first. मैं यही कह रहा हूँ कि आपको जो भी इच्छाएं आपको है, आपकी कल्पनाएं,
आप सब इस सब आपको मसीह के हाथ में देना है. Even if you desire to get married, that has to be given to Jesus Christ. If you desire to get married, हाँ, अगर आपको शादी भी करनी है, you have to give it to Jesus Christ. ये आपको मसीह के हाथ में देना है. Because then Christ will give back to you what is part of his plan. तो जब आप मसीह के हाथ में सौंपते हैं तो मसीह आपको जो आपके लिए मसीह का इच्छा है आप उसको पा सकते हैं. Maybe you want to become famous as a singer so everybody loves you. अगर आपकी ये इच्छा कि आप बहुत फेमस सिंगर बन जाएं ताकि सब आपको बहुत प्यार करें. And God has given you that talent. और प्रभु ने मसीह ने आपको ये वरदान दिया है. Maybe God wants that talent so that through your voice they will reach Jesus Christ. और शायद प्रभु का प्लान, प्रभु का इच्छा है आपके लिए कि आपकी आवाज, आपका जो वरदान प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु इस्तेमाल करे ताकि लोगों को जब वो आपकी आवाज सुने वो मसीह में आ जाए. See, God wants to use everything you are for him. मसीह चाहता है कि जो वो उसने आपको दिया है वो इस्तेमाल करे अपने लिए. In the same way as when you are married to someone, उसी तरह जब आप किसी के साथ आप शादीशुदा हो, everything you do, your talent, your efforts, everything is for the benefit of your spouse. तो जब आप शादीशुदा हो तो जो भी आप करते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी कल्पना, अपनी काम, सब आपकी बीवी या हस्बैंड के लिए ही है. In other words, you don't do things just for yourself. सिर्फ अपने लिए आप नहीं करते हो. If you stay healthy and you stay fit, it is also for your spouse. जब आप अपने शरीर को अच्छी तरह से रखते हो और अपना हेल्थ को आप संभालते हो तो वो आपके लिए नहीं, सिर्फ वो आपकी वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए भी है. If you make yourself look beautiful and take care of yourself, you don't do it for people outside like you used to before. You do it for your spouse. जब आप अपने आप को संभालते हो और अच्छे लगते हो और सिर्फ वो अच्छे लगना सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपका फैमिली के लिए भी है. For your spouse. और आपकी वाइफ या हस्बैंड के लिए है. Before, when you were single or before when you were without Christ, you did it for the people of the world. जब आप अकेले थे तो ये सब आप अपने आप को संभाल रहे थे सिर्फ दूसरों के लिए. लेकिन अभी शादी के बाद आप अपने आप को संभाल रहे सिर्फ अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए. Now, the things you learned, the education you have before was for your own benefit to have more knowledge in front of people. जो आपकी ज्ञान है, जो बुद्धि आपने पाई है, वो पहले था सिर्फ दूसरों को सिखाना या दूसरों को समझाना या दूसरों के सामने दिखाना. या दूसरों को के सामने दिखाना. But now that the knowledge you have and the things you have learned are there also to help your spouse. और अभी जो ज्ञान और बुद्धि आपने पाई है वो ज्ञान और बुद्धि सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी हस्बैंड या वाइफ के लिए भी है. So why am I saying these things? मैं ये क्यों बात दोहरा रहा हूँ? Because you have to understand that you have to completely change your mindset and realize that in order to live this new life, you have to change things. मैं ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको ये बात समझना चाहिए कि if you want to change your life, if you want to have a new life, you have to change your mindset. तो अगर आपको नया जीवन पाना है, आपको अपना मन बदलना है. You have to change your desires. आप अपनी इच्छाएं को बदलना है. They cannot be your own desires, but they have to be the desires of God. ये अभी आपकी इच्छाएं सिर्फ आपकी खुद की इच्छाएं नहीं हो सकती है. आपकी इच्छाएं अभी प्रभु की इच्छा है जो आपके लिए है. You have to desire what the Spirit wants for you.
आपको आपकी इच्छा ये होनी चाहिए जो पवित्र आत्मा आपके लिए इच्छा रखती है। And this will only happen when your own desires are put to death. और ये तभी होगा जब आप अपने खुद की इच्छाएं को मारेंगे। Even if you don't understand what is happening, you have to completely forget about everything you think you know. और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपको ये पूरी चीज मसीह के हाथ में समर्पण करना चाहिए। You have to understand that you might be wrong in everything you have done so far. आपको ये भी जानना चाहिए कि आप शायद जो भी आप अभी तक कर रहे हो वो शायद पूरा गलत है। The only way to completely walk in the ways of Christ is for you to completely empty yourself and realize that you might be wrong. ये सबसे पहली बात मसीह के पीछे जाना या मसीह में रहना, ये कि अपने आप को खाली करना है, क्योंकि शायद आप जो भी अभी तक कर रहे हो वो पूरा गलत भी हो सकता है। You see, if you go to a master and you say, well, I know everything, then they will stop teaching you. अगर आप किसी शिक्षक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे सब पता है, वो आपको कुछ नहीं सिखाएंगे। See, we deal with many people who come to us for counsel. हम लोग जो भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारा हमसे सवाल पूछते हैं, And we give them the counsel that the Holy Spirit gives us. हम उनको जो पवित्र आत्मा हमको बताती है उनके लिए हम वही शिक्षा उनको देते हैं। We don't use our brains. हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। We might have some experience in life, but we don't use our brains. हमारे लाइफ में शायद कुछ एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस के अनुभव, हमारे अनुभव पर उनको शिक्षा नहीं देते। जो पवित्र आत्मा शिक्षा देती है उनके लिए वही बताते हैं। We don't depend on our knowledge. हम अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं रहते। But because now we are joined with Jesus Christ, we listen to His voice. क्योंकि अब हम जब मसीह के साथ एक हुए, हम मसीह पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। And many times we give them this counsel and they say, yes, yes, I know. और जब हम उनको ये शिक्षा देते हैं, वो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। In other words, I already knew that. There's nothing new you're telling me. तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सब पता है, कोई नई चीज आप नहीं मेरे को बता रहे। You know what I do when that happens? और आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ जब ये होता है? I wash my hands from that person. मैं अपना हाथ धो लेता हूँ। I say, I don't want to tell you anymore if everything I'm telling you already know. और मैं इसलिए हाथ धो लेता हूँ क्योंकि अभी मैं इससे आगे उसको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो तैयार नहीं है कुछ सीखने के लिए। You see, I don't have to prove myself to the person. मैं अपने आप को साबित नहीं करना चाहता। I know who the Holy Spirit is. मैं पवित्र आत्मा को जानता हूँ। I know what He's saying. मुझे पता है कि पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है। I don't need people to approve of what I am telling them or give me praise for the counsel I give them. मुझे लोगों की मंजूरी नहीं चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा से उनको क्या शिक्षा दे रहा हूँ। मुझे पता है पवित्र आत्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए। In the same way, Jesus Christ will only speak to you when you surrender to Him. इसलिए यीशु मसीह आपसे तब बात करेगा जब आप उनमें समर्पण करते हैं। See, there's a verse in the Bible that when I read this verse, it actually made me realize the key to knowing God's will. एक वचन है बाइबल में, पवित्र वचन में, जब मैंने उस वचन को पढ़ा मुझे समझ में आया कि एक चाबी है। ये वचन ऐसा चाबी है हम लोगों को प्रभु का प्लान हमारे लिए पता करने के लिए। I don't remember the exact verse, but the verse said that if you are willing to obey God, if your heart is ready beforehand to obey God, God will reveal His will to you. और ये वचन मुझे याद नहीं है वो वचन कहाँ पे है, लेकिन ये वचन ऐसा लिखा गया है कि जब हम प्रभु की इच्छा को जानना चाहते हैं, प्रभु हमको अपनी इच्छा बताता है। मानना चाहते हैं। जब हम उनकी इच्छा को मानना चाहते हैं, प्रभु अपनी इच्छा को हमको बताता है। When we are willing to obey His commands, then He will give us His will. अगर हम लोगों को इच्छुक है प्रभु की आज्ञा को का पालन करने के लिए,
तब प्रभु हम लोगों को अपनी इच्छा बताएगा। So God wants first your heart, and then He will open His mouth and reveal to you the will for your life. पहले प्रभु चाहता है कि आप अपने दिल उनके हाथ में समर्पण करें, तब वो आपका जो नया जीवन है, जो प्रभु का प्लान है आपके नए जीवन के लिए, प्रभु आपको बताएगा। So if you want to live this new life that Christ is offering us, you have to die to what you think you know. अगर आपको ये नया जीवन चाहिए प्रभु में, ये पहला कदम आपको उठाना है कि जो आपका ज्ञान है, आपका बुद्धि है, उसको पहले मानना है। Because let me tell you something, God's ways are better than ours. एक चीज आपको बताऊं, प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा से बेहतर है। God's thoughts are higher than our thoughts. प्रभु की सोच हमारी सोच से बढ़कर है। You have a business plan, आपको एक बिजनेस करने का सोच है, विचार है। and God has a better business plan. प्रभु आपके लिए एक बेहतर बिजनेस विचार रखा है। You have an image in your mind of who you want to marry. आपको अपने दिमाग में एक इच्छा है कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। God has a better image for you. प्रभु आपके लिए उससे बेहतर एक इंसान है आपके लिए। No matter what you are thinking, what you're desiring, God has a better one for you, a better plan. जो भी इच्छाएं आप सोच रहे हैं, आपकी कल्पनाएं हैं, प्रभु आपके लिए उससे भी बेहतर आपके लिए कल्पना और इच्छाएं हैं। That's why you have to give death to the old things in your life. इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी पुरानी चीजों को आपको मारना है। Next week we'll continue with this teaching. अगले हफ्ते इस शिक्षा पर हम लोग और भी पढ़ाई करेंगे। And we will see how your family can be your biggest hindrance for you to live a new life. और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि आपका खुद का परिवार कैसे रुकावट बन सकती है आपको नया जीवन जीने, प्रभु में नया जीवन जीने का। The ties you have with your family and the ties you have to what you think is important in life can be what is stopping you from living the new life God has for you. Okay. एक जो आपके परिवार के साथ जो ये बंधन है, वो रुकावट प्रभु आपको दिखाएगा कि ये भी रुकावट हो सकती है। आपकी खुद की कल्पनाएं भी एक रुकावट हो सकती है कि आपको प्रभु का जो इच्छा है, कल्पना पूरा होने में। You see, just like when you get married, your wife wants you and your husband wants you only for them. जब आप शादी के बाद शादीशुदा उनको पता है, बीवी चाहती है कि हस्बैंड सिर्फ उनके लिए रहे, और हस्बैंड चाहते हैं कि बीवी सिर्फ उनके लिए रहे। Christ is the same way. मसीह बिल्कुल ऐसा ही है। He wants you only for himself. मसीह चाहता है कि हम लोग सिर्फ मसीह के ही हो। And when you surrender completely to him, he will use you to bless your family. तब जब आप मसीह में आप अपना पूरा समर्पण देते हो, मसीह आपको इस्तेमाल करेगा अपने परिवार के लिए। So don't miss out next week. I'm going to go deep into this, and many of you are going to be set free from many of the change you've been living with in your whole life. अगले हफ्ते मिस मत करना, क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि जो बंधन आपके लिए रुकावट बन के रह गई कि आप नया जीवन में प्रभु में नहीं आ पा रहे, मैं वो शिक्षा इसके बारे में बताऊंगा। So this new life will begin for you because you will let go of the old things. ये नया जीवन आपके लिए शुरू होगा क्योंकि आप पुरानी चीजों को आप मारेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।